নমস্কার, এসএসসি নেটওয়ার্কের 279 নম্বর চ্যানেলে এবং পাশাপাশি অন্যান্য সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত হয়ে থাকা নর্থ ইস্ট নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই মণিভূষণ চৌধুরী। এই মুহূর্তের এক ব্যতিক্রমী খবর, হাতিখিরা হাসপাতালের নৈশ প্রহরী খুনে নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, তীব্র প্রতিক্রিয়া। পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বাজারিছড়া থানা অধীন লোয়ের পোয়া হাতিখিরা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের অস্থায়ী নৈশ প্রহরী প্রসেনজিৎ আকুরার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রাণগৌর জড়িত নন। প্রাণগৌর একজন নির্দোষ ব্যক্তি, তাকে ঘুম থেকে বাজারিছড়া থানার পুলিশ নিয়ে যায়। অভিযুক্ত উত্তম গৌর পুলিশি জেরায় প্রাণগৌরের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ করেননি। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাণগৌরের পরিবারের পক্ষে অনিতা গৌর, টিঙ্কু গৌর, প্রলয় গৌর, অনামিকা গৌর জানান, প্রসেনজিৎ আকুরার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রাণগৌর জড়িত নন। তাকে বাজারিছড়া থানার ওসি ডেকেছেন বলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ উত্তম গৌরকে বের করে দেওয়ার জন্য তাকে চাপ সৃষ্টি করে, অথচ উত্তম গৌরকে গ্রেফতার করার পরও প্রাণগৌরকে পুলিশ ছেড়ে না দিয়ে শ্রীভূমি কারাগারে পাঠায়। এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ এলাকায়। আমরা জিগাইয়া ছাড়ি দিমু আর জোর করিয়া উঠাইয়া নিছে তারা। আর তারা কইছে যে থানার যখন আমার ছেলে আর আমার দেওরে গেছে, সকাল রাত্রেও গেছে, তো কইছে যে উত্তম যদি আয় তো আমি তোমার জামাইরে ছাড়ি দিমু। তো আমরা তো ওগুলা কিছু উত্তমের ব্যাপারে কিছু জানি না। সকালে তো আমরা শুনতে পাইছি যে না উত্তমে কি যেন সিলিন্ডার হয়েছে। এরপরে তো করলো আর টিঙ্কু আবার গেছে তারা থানার, তো কইছে যে না আমরা তো ছাড়তাম না তারে, ওই আমরা কিও করমু বাইরে আমরা প্রেশার পড়ে বেজান, আমি ছাড়তে পারতাম না, ওটা ওসি তারা কইয়া দিছে। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीनाथ गौड़, मैं प्राण गौड़ का लड़का हूँ। मेरा पापा को जब रात को उठा के ले गए उस दिन, जब वो कुछ लोग पुलिस लोग आए थे, 4 पुलिस आए थे, गेट पे आए तो मैं भी सो रहा था, मेरे पापा भी सो रहे थे। तो बोला कि गेट खोलो कि तुम्हारे कौन है, प्राण गौड़ कौन है। तो मैंने बोला मेरा पापा है। ठीक है उनको बुलाओ। मैंने बोला ठीक है वो सो रहे हैं, आ रहे हैं। तो गए और प्राण गौड़ बोल के गया तो बोला आपको ओसी सर बुला रहा है। तो ठीक है ओसी सर बुला रहा। तो मेरे पापा जा रहे थे हॉस्पिटल के पास जहाँ ओसी सर थे। तो ओसी सर को उन लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा तो ओसी सर ने बोला नहीं उसको थाना में लेके जाओ। तो थाना में लेके गया। थाना में जाने के बाद हम लोग भी गए पीछे पीछे, मैं और मेरा अंकल। तो जाके हम लोग ने पूछा ओसी सर से क्या हुआ। ओसी सर थोड़ी देर बाद आए तो ओसी सर से पूछा क्या हुआ, क्यों मेरे पापा को लाए। तो ओसी सर ने बोला नहीं तो उत्तम कौन है। तो मैंने बोला उत्तम मेरा काका, तो उसको जाके लेके आओ। उसको लेके आने से हम लोग इसको छोड़ेंगे। हमको तो कुछ पता नहीं उत्तम कहाँ गया है, कौन है उत्तम। वो तो मेरा काका, हम लोग से 10 साल से कोई बातचीत नहीं है। वो जमीन के बाबत से कुछ हम लोग का लफड़ा हुआ था, तब से हम लोग का कोई किसी से बात नहीं होता। हम लोग तीनों काका जो है तीनों सेपरेट रहते हैं, जमीन के वजह से प्रॉब्लम हुआ था। जब फिर से हम लोग को ओसी बोला कि तुम लोग घर जाओ, जब तक वो सिलेंडर नहीं होता तुम्हारे बड़े भैया को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पापा को कि नहीं छोड़ेंगे, इनको मेरे अंकल को बोला तुम्हारे बड़े भैया को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है हम लोग तभी भी हम लोग रात को उधर आगे बारह था, लोग ठंडे का दिन था, लोग भी उधर ही थे। मैं और मेरा अंकल पूरा रात उधर थे। तो हम लोग सुबह आगे 3 बजे के टाइम पे आए हैं रात को, कि हम लोग सुनने में पाए कि नहीं कोई उत्तम आरोही जो है वो धरा खाया। मेरे पापा को बस छोड़ दो, यही चाहिए और क्या। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उनको रख के क्या फायदा वहाँ पे। वैसे उनका शुगर है, डायबिटीज है, इतना मेडिसिन भी तो चाहिए ना उनको टाइम टू टाइम। जब मेडिसिन भी उनको नहीं मिलेगा तो उनका उधर दिक्कत हो रहा है। जब उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं, प्रूफ दो हमें तो हम लोग देखेंगे। सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ भी नहीं आया। কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাস কলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সিপিভিসি, ইউপিভিসি, পিভিসি আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। নর্থ ইস্ট নিউজের শ্রীভূমি প্রতিবেদকের প্রতিবেদনে আসুন তার পরিবারের লোকেরা কি বলছেন সাংবাদিক সম্মেলনে, তা এক ঝলকে দেখি। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम है प्राण गौड़। उस दिन का घटना जो हुआ है, हम लोग सब तो सो रहे थे, खाना पीना खा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। अचानक से वहाँ से आवाज़ आया। कहाँ से आवाज़ आया?
हॉस्पिटल की तरफ से आवाज़ आ रहा कौन सा था। हॉस्पिटल? ये जो आपका हाथीगिरा CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, यहाँ से आवाज़ आया शुरू हो गया। तो हम लोग भी आवाज़ से उठ गए। उठने के बाद तो देखे यहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम लोग वो सब दिशा पे है ही नहीं। हम लोग सोचा कुछ चोरी सोरी हो गया है न, क्या हुआ है, इस वजह से हम लोग चुपचाप वहाँ घर पर पे हैं। ट्रेन का काम चल तो रहा था, रोड वगैरह का काटने का काम चल रहा था। सोचा उसी का आवाज़ होगा, संक्रांति का दिन है, पार्टी उटी कर रहे होंगे, इस वजह से शोर शराबा हो रहा है। दिक्कत हुआ कि अचानक से फिर से आवाज़ आया कि कोई जो वहाँ का लड़का है वो रहता था, उनका मर्डर हो गया है। प्रोसंजित नाम लड़का है जो वहाँ पे वार्ड बॉय नहीं, वो सिक्योरिटी का काम करता था, उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद तो दोबारा पुलिस लोग यहाँ पे आया। मेरा घर मिडिल पे है, बड़े भैया का साइड पे है, और जिन्होंने आरोपी समझाया गया है उनका घर साइड पे है। और आने के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ से रास्ते पे भी मैं निकला था। निकलने के बाद सब देखा कि नहीं, बात तो सही है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसके बाद अचानक से पुलिस आया। पुलिस आने के बाद घर पे दरवाज़ा पे, बड़े भैया का दरवाज़ा पे खटखटाया था। मैं भी यहाँ मौजूद था, क्योंकि यहाँ से ऊपर से थोड़ा दिखाई दे रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं भी यहाँ मौजूद था। मौजूद होने के बाद तो पुलिस आया, और मेरे भैया जो है शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, शुगर भी हाई है बहुत सारा। और उनको उठाया गया, उठा के बोला थोड़ा आपको भैया को बुलाओ। वो सो रहे थे, तो उन्होंने बोला क्या बात है। वो उनको उस मामले में पता ही भी नहीं था, वो निकले भी नहीं थे घर से। तो बाद में हम लोग निकले तो भैया ने बोला अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो निकले बाहर, तो पुलिस लोग ने बोला कि नहीं। तो हम भी पूछे पुलिस से क्या बात है, इनको क्या है, इनसे क्या लेना देना है। तो बोले कि नहीं, हमसे थोड़ा बड़े भैया बोल के पूछताछ करना है। और कहीं से आवाज़ आया था कि उत्तम गौड़ जो मेरे मझले भैया हैं, उन्होंने ऐसा आरोप किया। वहाँ से आवाज़ निकल रहा था, पुलिस भी अचानक वहाँ से कूदी। तो इस वजह से हम लोग भी कुछ काफ़ी डर गए थे, हाँ क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अचानक से ऐसे क्या घटना हो गया। बाद में वो लोग पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पे ले गए, प्राण गौड़ जो मेरे बड़े भैया हैं। ले जाने के बाद हम लोग भी पीछे पीछे बाइक से गए, मैं और मेरा भतीजा जो प्रलय है। और जाने के बाद बहुत घराव, बहुत देर तक वेट किया, हम लोग को भी अंदर जाने नहीं दे रहा है। हम लोग बोला भैया को जो लाए हैं थोड़ा देखने दीजिए क्या है क्या नहीं मैटर है। हाँ, तो हम लोग को भी अंदर जाने नहीं दे रहे, नहीं उसी सार आएंगे तो ही होगा। तो हम लोग वेट किए लगभग 1 बजे 1:30 बजे रात तक, वहाँ तक वेट किए। वेट करने के बाद उसी सार आए। उसी सार से मेरे भतीजा ने पूछा कि क्या बात है, उनको कब तक छोड़ा जाएगा, पूछताछ हो गया क्या। तो उसी सार ने बोला कि नहीं, जब तक जो मर्डर है, जो तुम्हारे भाई है, हाँ, और जो इनका अंकल है वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हाँ उनको। तो ऐसे बोला। तो ठीक है बोला, तो हम लोग भी बोले तुम लोग घर चले जाओ, यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा, हम लोग नहीं छोड़ेंगे अभी। तो सुबह उनको बोला इतना ही कि वो आ जाएगा तो हम लोग इनको छोड़ देंगे, पूछताछ के लिए लाए हैं, सुबह छोड़ देंगे, आप लोग चले जाओ आराम से घर, सुबह हम लोग छोड़ देंगे पूछताछ करके। और वही बात है। तो गया, तो सुबह हम लोग घर पे थे, लगभग 9-10 बजे के घर जो उत्तम है मेरे घर पे, उनका तोड़फोड़ हुआ। तोड़फोड़ होने के बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे इकट्ठा, हम लोग भी उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कौन कौन लोग हैं। आने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस आया, तो वो लोग का डिमांड था कि आरोपी को पकड़ो, आरोपी को पकड़ो। तो पुलिस ने बोला कि नहीं, आरोपी तो सरेंडर हो गया। तो इससे हम लोग को पता चला कि आरोपी भी सरेंडर हो गया है। तो जब आरोपी सरेंडर हो गया है, जो आरोपी खुद वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया, हम लोग को न्यूज़ के जरिए पता चला कि आरोपी स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं मेरे भैया गुनहगार नहीं है, वो उनके मामले में कुछ नहीं है। लगभग हम लोग तो कोई लगभग उस आदमी से आपस में 10 साल से 15 साल हो गया, लगभग कोई लेन देन नहीं है। आपस में रास्ते में भी आने जाने से बातचीत नहीं होता है, पूजा पाठ होने से भी घर से हम लोग का कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रहता है। इस तरह का भाई है, लेकिन आपसी मामला का जो झगड़ा है ये बरकरार रहता है। हम लोग आपस में ठीक है, एक जगह है, भाई है, लेकिन हम लोग से कोई रिलेशन ऐसे नहीं है उनका। तो पता चलने के बाद हम लोग सस्पेक्ट को तो जो पकड़े थे, उनको जो आरोपी था उनको तो पकड़ लिया। जब सरेंडर खुद कर दिए हैं तो मेरे भैया को क्यों दोबारा रखा गया है वहाँ पे, तो रखने के क्या कारण है? उनको दोबारा चालान कर दिया गया करीमगंज पे, किस वजह से चालान कर दिया गया? अभी उनको अगर हमारे न्यायाधीश के पास बस इतना ही विनती है कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय करे और
वो आरोपी नहीं है। कौन से हम लोग जब पूछे पुलिस से यहाँ पे तो बोले नहीं, बहुत प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर ऊपर से आ रहा है कि उनको नहीं छोड़ना है। अरे जब वो आरोपी है ही नहीं तो उनको नहीं छोड़ने का प्रेशर कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? इस मामले को हमको भी तो जानना है कि उनके ऊपर प्रेशर कौन डालेगा, पुलिस के ऊपर प्रेशर कौन डाला है। जब आरोपी खुद पकड़ा गया है तो उसके ऊपर जांच पड़ताल किया जाए ना। जो न्याय जो है न्याय वही न्याय करना चाहिए। बेवजह की उनको फंसा के बेकार में उनको लेके चला गया। अभी वहाँ पे ले जाके कहाँ पे रखा है, करीमगंज पे शायद रखा है, और कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमको न्यायाधीश के पास इतना ही विनती है कि हमको न्याय मिले और उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका अचानक से बीमार होकर कब उनका दुर्दशा हो सकता है कोई ठीक नहीं है। तो हमको इतना ही मिलता है कि जल्दी से जल्दी उनको छोड़ दिया जाए। নর্থ ইস্ট নিউজ প্রতিনিয়ত প্রচারিত হয়ে থাকে এসএসসি কেবল নেটওয়ার্কের 279 নম্বর চ্যানেলে, পাশাপাশি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে তা প্রচারিত হয়ে থাকে। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আপনাদের মতামত তুলে দিতে পারবেন, বা আপনাদের এলাকার যদি কোনো খবর আমাদের মাধ্যমে প্রচারিত করার ইচ্ছে আপনাদের থাকে, তবে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আপনারা মতামত যেখানে লিখেন প্রতিনিয়ত, সেখানে নিজেদের ফোন নাম্বার তুলে দিন, আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। এ সংবাদ এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।